Hello everyone, welcome back to our channel. And today we are going to start a new anatomy lectures about the nervous system, and it's a new series of science-based lectures. So please like and subscribe to our channel, and please try to show some support if you are liking and regularly watching our videos. So let's start with the nervous system. So basically, what is nervous system? Nervous system basically क्या होता है? Nervous system का बेसिक काम होता है कंडक्शन. अब कंडक्शन क्या होती है? अब इसकी डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि द नर्वस सिस्टम इज डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्स टू द चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. देखो, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी का मतलब ये है ना कि नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदरूनी चेंज, द चेंज विच आर occurring inside the body and changes occurring outside the body. Inside it refers to as the changes which are occurring hormonal, कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? नर्वस सिस्टम ही कंडक्ट कर रहा है. जो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे हैं. और आउटसाइड द बॉडी का बेसिक एग्जांपल हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हम देखते हैं. तो समझ लो मैंने किसी बड़ी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो एकदम से मैं अपना हाथ पीछे कर लूँगा, तो वो है आउटसाइड द चेंज, कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से चेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, और वो किससे डिटेक्ट होगा? न्यूरॉन से हमारी मतलब ब्रेन तक सिग्नल भेजेंगे. अब व्हाट इज रिटन हियर दैट together the nervous system plus the endocrine system coordinates and control the vital functions of our body and also maintain the homeostasis. What is written here basically, it's an important point. Key together the nervous system and the endocrine system. Basically, endocrine system में क्या आते हैं? Glands. The glands come in the endocrine system, and the glands और जो nervous system और glands साथ में coordinate करते हैं, ये साथ में function करते हैं और and control करते हैं vital function of our body and maintain the homeostasis. For example, such as the, हम किस gland का example लें? Okay, हम लेते हैं, सब लोग समझ लो पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जो एंटीरियर पिट्यूटरी वेडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं उसे हम, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. वी विल फर्दर डिस्कस दीज टॉपिक्स. अब तुमने याद रखना है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स के वो न्यूरो हाइपोफाइसिस में उसे कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं और हार्मोन्स की रिलीज को हेल्प करते हैं. जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो बेसिकली तुम्हें याद रखना है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस कुछ हार्मोन्स के कंट्रोल को रेगुलेट करता है, और वो होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन को. तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन, व्हाट डज द ऑक्सीटोसिन फंक्शंस इन आवर बॉडी? इट रेगुलेट्स द contraction and stretching of the uterus during the parturition, and so it's a basic example of the how the endocrine glands and the nervous system basically coordinates and functions in our body. So, and maintain the homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the balance, or it is a scientific term, or a scientific vocabulary substance, or word for given for the balance. So it is simply meaning that the nervous system and the endocrine system coordinates and controls the vital function of our body to do what? To maintain balance in our body. So what are the parts of the nervous system? It's basic. We are studying from the primary school and the elementary school. The brain, the spinal cord, and the peripheral nerves. The brain, which is present in our head and besides the cranium, and it is the main functioning organ of our body. It is the largest brain, and the largest brain among the all animal kingdoms. And we are more advanced because of this brain. And the brain and the spinal cord, which is स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है कि स्पाइनल कॉर्ड वही ना कि ब्रेन की ब्रांच है, ब्रेन के मेडुला से निकलती है और पूरी हमारी वर्टिब्रे से पूरी हमारी स्पाइन पूरी बनती है. और पेरिफेरल नर्व्स मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स फैली हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करके. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. सॉरी, there are two types of nervous systems basically. One is the sympathetic nervous system, and one is the parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system is, we can also name it as the SNS, and the parasympathetic nervous system we can also name it as the PNS. So the parasympathetic nervous system is the, इसमें दो चीज़ें आती हैं sympathetic nervous system में जो हमने पढ़नी है. One is the brain and one is the spinal cord.
ओके, सो द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इन, हमने सिंपली पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, इतना आता है इसके अंदर। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये एसएनएस में आएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें आएंगी आपकी पेरिफेरल नर्व्स, तो ये पीएनएस, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो टाइप्स ऑफ नर्व्स, देखो दो टाइप्स की नर्व होती है, क्रेनियल और एक सैक्रल। क्रेनियल कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? क्रेनियम से, जो हमारे सर के ऊपर होती है, ठीक है। और जो सैक्रल नर्व्स होंगी, सैक्रल नर्व्स होती हैं, तो हम देखना याद रखना टाइप्स ऑफ नर्व, क्रेनियल सैक्रल। क्रेनियल ब्रेन में होती हैं और सैक्रल अदर देन ब्रेन, ठीक है। अब दो टाइप्स की नर्व होती हैं, एक और क्लासिफिकेशन हम देख लें तो एंड सम ऑफ देम आर, और इनमें से कुछ होंगी एफरेंट और एक कुछ होती है इफरेंट। एफरेंट होती हैं जो सिग्नल लेके जाती हैं, इफरेंट होती है जो सिग्नल लेके आती हैं, ठीक है। सो वी विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, make just the page. ओके, सो द यहाँ पे लिखा है कि द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो पीएनएस होता है ना हमारा, वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। आगे पर मतलब हमने पीछे क्या देखा, सिंपैथेटिक की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें हमने पढ़ लिया कि नर्व्स आती हैं, और क्रेनियल सैक्रल हमने पढ़ ली। अब इधर हम क्या देखेंगे कि जो जो पीएनएस होता है ना, जो पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ये टू डिविजन्स। एक होता है सेंसरी डिवीजन, एक होता है मोटर डिवीजन। जो सेंसरी डिवीजन होता है ना उसमें क्या आता है, अब पहले हम सेंसरी डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद मोटर डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो सेंसरी डिवीजन होता है ना, इट कंटेन्स द सेंसरी और द एफरेंट न्यूरॉन्स, जो सिग्नल लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो सेंस करते हैं, ठीक है। जो मतलब ये मेरा हैंड है ना, मैंने यहाँ पे गर्म चीज टच कराई तो यहाँ पे मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से ब्रेन को सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन को सिग्नल, ना कि ठीक है, मतलब ये सिग्नल्स लेके जाएंगे, ठीक है। और जो सेंसरी डिवीजन है इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ना, और इन सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे जिनको हम बोलेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे ना इसके ऊपर, तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करेंगे अब, कि दी सेंसरी रिसेप्टर्स कंट्रोल, क्या दो चीज़ें कंट्रोल करेंगे, सेंस एंड द अदर सेंस कंट्रोल करेंगे सेंसेस। जो हमारा सेंसेस होती है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है का सेंसरी डिवीजन। सेंसेस जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। अब क्या होता है ना कि सेंसरी और इसमें क्या कौन कौन से स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है कीमो रिसेप्टर्स, एक होता है बेरो रिसेप्टर्स, एक होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। अगर आपने ब्लड प्रेशर पढ़ा है तो ब्लड प्रेशर में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं हमारे उसके ऊपर होते हैं कैरोटॉइड, कैरोटॉइड साइनस एंड द अपर आर्क ऑफ द अरोटा, कैरोटॉइड आर्टरी भी होते हैं ये। तो ये कंट्रोल करते हैं कि जब ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आउटपुट को कम ज़्यादा करते हैं, जिससे अगर हमारा हाइपरटेंशन है तो फिर हाइपरटेंशन में जो हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो उसे नॉर्मल में लेके आएंगे, ठीक है, बाय कंट्रैक्टिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड द वेजो डायलेशन। ओके, सो here in the sensory receptor control, the senses are coming. In senses, the sight, hearing, smell, taste, touch, and or other in other classes of the sensory receptors, there are the chemoreceptors, baroreceptors and osmoreceptors. chemoreceptors भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, पर ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन और तो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ या कम ज़्यादा हो जाए उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड डिवीजन है ना, एंड नाउ द सेकंड डिवीजन इज आर द मोटर डिवीजन। सो द मोटर डिवीजन कंटेन्स द इफरेंट न्यूट्रॉन जो सिग्नल लेके आते हैं, ठीक है। मतलब एफरेंट क्या करेंगे ना, एफरेंट ले मतलब जो जो ब्रेन से सिग्नल हमारे हैंड को लेके जाएंगे, और जो इफरेंट क्या होंगे जो हमारा हैंड से ब्रेन को लेके जाएंगे, ठीक है।
अब जो मोटर डिवीजन होता है ना, तो मोटर डिवीजन दो टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है एसएनएस, एक होता है एएनएस। एसएनएस होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एएनएस होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ये दो सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन में आपका रिसेप्टर्स वगैरह, और मोटर डिवीजन में एसएनएस एएनएस, सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मींस नर्व्स। मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ना, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स की बात हो रही है। तो मोटर डिवीजन में भी दो आते हैं, एसएनएस और एएनएस। तो एसएनएस में क्या होता है, अब देखना। Now in the basically the motor division, the SNS, the somatic nervous system, the somatic nervous system controls what? The voluntary movement. जो हमारी the skeletal muscles जो हमारी होती हैं, जो muscles के साथ attach होती हैं, उसमें हमारी voluntary movement होती है। तो skeletal जो skeletal muscles की voluntary movement को कौन control करेगा? SNS, which is the somatic nervous system, and in the ANS, जो ANS होगा हमारा autonomic nervous system, वो क्या control करेगा? Control the involuntary movement. SNS refers to as the voluntary, and the ANS refers to as the involuntary. Involuntary and involuntary movement हमारी बॉडी में क्या हो सकती है, जैसे peristalsis of the esophagus and heartbeat. Heartbeat is also not in a control and also not in the control of a will. So it is the what movement, the involuntary movement. So in the ANS or other involuntary movements such as the glandular activity, the movement of the glands are also comes under the involuntary movement, and it is controlled by the autonomic nervous system, which is the ANS, which is the part of the motor division of the peripheral nervous system. Okay, so the glandular the not the glandular activity, the autonomic nervous system is divided into again two type of system: parasympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Okay, so it's only for today, and I think I hope you all got what I just told you all in the lecture. Thank you.